ओके, सो कल हम लोग देख रहे थे डेटा फ्रेम, है ना। तो डेटा फ्रेम हम लोग देखेंगे। नाउ वी स्टार्ट our new file, that is python 3. Okay, so data frame, that's it. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमने देखा है डेटा फ्रेम है क्या। सो डेटा फ्रेम लास्ट टाइम ने देखा था कि डेटा फ्रेम क्या है। इट्स ए टू डायमेंशनल टेबल, इज ए काइंड ऑफ टेबल। सो इन द फर्स्ट वी इंपोर्ट pandas as pd. इसमें अच्छा हो जाता है, इसमें जूम नहीं होता Okay, गूगल मीट में। in the next, okay, pandas as pd. Now suppose we have one list. Okay, list equal to, suppose we have अरे 2 3 4 5. Okay, and then if we create okay, so if we create one pd, okay, so suppose हमने create किया df equal to pd dot data frame. Okay, then l. Okay, now print df. Okay, print df. क्यों print नहीं हुआ? Okay, now so import ठीक है। so next the list is converted into, किस में कन्वर्ट हुआ? into a column. ठीक है, so when we get the shape इसका मुझे क्या मिलेगा? shape. Okay, now again I use print df. Okay, so shape क्या है? 4 into 1. ऑलवेज आपको डेटा फ्रेम में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, सो इन द सेम केस सीरीज में क्या मिलता है? ब्लैंक मिलता है। okay, so 4 is the number of rows, so the first will be the number of rows, second will be number of columns. Okay, so ये हमने देखा था। so the next है कि suppose we have, what we have, multiple list. Okay, so one list, one more list, suppose 1 1 2 2 3 3 and 4 4. Okay, now we have list, two list. Now look, okay, so when we have multiple list, okay, so now the list becomes one row, not the column. Okay, so if we provide a single item, okay, single item, then it will convert into किसमें? column में. But if we give the list with multiple values, it will convert into rows. ठीक है, so ये आपकी एक फर्स्ट रो बन गई, ये सेकेंड रो बन गई। ठीक है, लास्ट में देखा था। सो नाउ ये क्लियर है। जब हम लोग लिस्ट किस में देंगे? मल्टीपल लिस्ट में होगी। व्हेन अ लिस्ट कंटेन मल्टीपल लिस्ट, देन इट विल कन्वर्ट इनटू रोज। ठीक है, नाउ द लिस्ट एलिमेंट बिकम द रोज। In the next form, suppose I want to change the index. Okay, basically the index is 0 1. Okay, now suppose I want to change the index, then I can change by using the index method. Index equal to, now the index, this one. Okay, this index is 0 and 1. Okay, suppose I want to change. Okay, so suppose I want to change this index, so I can change, I can set a, then I can set b. Okay, now
इंस्टेड ऑफ 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा a और यहाँ पर क्या आ जाएगा b बिकॉज वी सेट द इंडेक्स. ओके, नाउ लेट्स सी. ओके, 2 rows and 4 columns. नाउ सपोज मुझे कॉलम का इंडेक्स चेंज करना है, देन वी कैन चेंज. कैसे चेंज करेंगे? नाउ सपोज आई यूज्ड कॉलम. ओके, सो कॉलम्स इक्वल टू. नाउ सपोज मुझे क्या रखना है, कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है, सपोज आई वांट टू पुट इन कैपिटल ए. ओके, नाउ कैपिटल बी, देन कैपिटल सी, देन कैपिटल डी. ओके, नाउ सी क्या आया, ए बी सी डी. ओके, सो वी चेंज द कॉलम नेम. ठीक है, क्या हुआ, कॉलम लेवल आपके चेंज हो गए. ठीक है, रो लेवल चेंज हो गए. ठीक है, सो ये आपका बेसिक था. नाउ क्रिएटिंग क्रिएटिंग डेटा फ्रेम. ओके, यूजिंग डिक्शनरी. ठीक है, नाउ विल क्रिएट वन व्हाट उठा. Okay, so now we create no. Okay, so डिक्शनरी से हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? सपोज वी हैव डिक्शनरी. ओके, डी इक्वल टू डिक्शनरी पता है आपको. ओके, सपोज आई यूज नेम एंड देन नेम सपोज मैंने रखा है यहाँ पर रमेश. ओके, द नेक्स्ट वन इज सपोज क्लास. ओके, बाय यूजिंग द क्लास I put 12th. Okay, so it's your dictionary. Now I want to convert this dictionary into data frame, मतलब tabular format. Okay, so the same we can use df equal to pd dot data frame. Okay, data frame, then we can simple put d. Okay, print df. What is the value? Class 12th data frame. Data frame data frame df. क्या इशू है? Sorry. So we require one list actually. Now see. Okay, so we require list. Okay, so with the dictionary, suppose I want to convert the dictionary into data frame, then one is the key, second is value. So the value must be in a list. Okay, value किसमें होगी? List में होगी. So it cannot accept, suppose there is a single value, then we accept the values in the list only. Okay, जैसे हमने starting में भी देखा था that we cannot create data frame by using a single variable. We supply the list, है ना? So इसके पहले यदि हमने देखा था यहाँ पर कि सपोज हमारे पास ये है एंड देन आई क्रिएट वन डेटा फ्रेम बाय यूजिंग ए सिंगल वैल्यू. ठीक है, देन इट जनरेट एरर. सपोज मैंने यहाँ पर 5 किया, बट सीरीज में क्या होता है, इट जनरेट. ठीक है, सो अब देखो क्या हो रहा है, 5 में ये एरर जनरेट कर रहा है, बट इसी 5 को यदि मैं क्या बना दूँ, सपोज यहाँ पर लिस्ट बना दिया, नाउ इट्स ओके. ठीक है, इन द सेम केस फॉर द सिंगल वैल्यू वी क्रिएट वन लिस्ट. So it may be multiple names. Okay, suppose Ramesh हो गया, the next is अशोक हो गया. Okay, now यहाँ पर एक और वैल्यू होगी,
11th, ओके, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, देन इट विल बी एक्सेप्टेबल। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू रमेश 12th, सेकंड वैल्यू अशोक, देन 11। ओके, इस टाइप से कनेक्ट होगा। सो यहाँ पर ये फर्स्ट रो बनेगी, देन ये सेकेंड रो बनेगी। तो ध्यान रखना है, डिक्शनरी में वैल्यूज कैसी होगी आपके पास, लिस्ट में होगी। ओके, सो इन द सेम केस वी कैन चेंज द इंडेक्स। अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ रहा है, नेम्स आ रहा है और क्लास आ रहा है। सपोज आई वांट टू चेंज दिस नेम्स। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर, ठीक है, होगा क्या। सो सपोज रो इंडेक्स क्या है, बाय डिफॉल्ट इज 0 1। ओके, सपोज मैं इसको ए बी कर दिया, नाउ आई सेट ए, देन आई सेट बी। ओके, acceptable. Now in the next case, suppose I want to change the columns. Okay, and then I change, suppose capital A and capital B. Okay, now look what happened. Okay, so in case of the dictionary, if we provide the columns, okay, and the column does not match with the dictionary values, key values, then it will accept as a none. क्या लेगा, नन। ये कॉलम और ये कॉलम किस केस में, इन केस ऑफ डिक्शनरी मैच होनी चाहिए। सपोज यहाँ पर मैंने एक कॉलम ले लिया, नहीं, ओके, नाउ यू सी क्या हुआ, इट चेंज। ठीक है, सो ये कॉलम और ये कॉलम इन केस ऑफ डिक्शनरी सेम होना चाहिए। ओके, इट विल बी सेम, बट सपोज सेम नहीं है तो क्या होगा, इट विल डिस्प्ले एन एन वैल्यू। सो ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग कॉलम में देते हैं, ठीक है, डिक्शनरी में देते हैं, देन द वैल्यू शुड बी सेम। ठीक है, अदरवाइज इट विल डिस्प्ले एन एन वैल्यू। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। यस सर। Yes, ओके, sir. नाउ नेक्स्ट थिंग, सपोज ए डिक्शनरी कंटेन मल्टीपल डिक्शनरीज। ठीक है, इसको हम लोग डिफरेंट टाइप से देखते हैं। नाउ ये क्लियर है, डेटा फ्रेम वाला। नाउ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम विथ ए डिक्शनरी which contains another dictionary. ठीक है, ओके, नाउ लुक अब, ठीक है, नाउ कैसे, सपोज हमारे पास से कोई डिक्शनरी है Q1। ओके, यहाँ पर लिखा डेट Q1, ओके, या फिर पर्टिकुलर हमने लिखा, क्या लिखा, सपोज आई राइट Q1, ठीक है, मैं राइट सपोज 41। ओके, Q1 में सेल कितना हुआ, सपोज 20,000। ओके, another Q2, देन सेल हुआ आपका कितना, सपोज 2500। ओके, सेम ऐसे ही हमारे पास Q2 है, ये है Q2। ठीक है, ये किसका है, P ऑफ Q1, ऐसे लिखते हैं। ओके, L ऑफ Q1, इसका 8000 ले लेते हैं, इसका 8500। ठीक है, सो देयर आर टू आइटम्स, नाउ आई क्रिएट वन सेल्स। ठीक है, सेल्स इक्वल टू, नाउ in 2015 द सेल किसका हुआ, L अंडरस्कोर Q1। ठीक है, फिर
in 2016, again suppose I want to display P of Q1, ठीक है, या एक ही प्रोडक्ट का भी हम लोग ले सकते हैं. नाउ द डिक्शनरी कंटेन अनदर डिक्शनरीज. ओके, अब मुझे इसे क्या बनाना है, डेटा फ्रेम बनाना है. सो आई सिंपल क्रिएट वन डेटा फ्रेम, ठीक है, and then use cells. Now print df. Look, so dictionary contain another dictionary, ठीक है. So in 2015 in 2016, ओके, ये जो वैल्यू थी Q1 Q2, ये क्या हो गया, आपकी रो बन गई. ओके, सेम Q2 Q1 Q1. ओके, तो यहाँ से Q1 ये Q1 एक रो बन गया, Q2 अनदर रो बन गया. सपोज यहाँ पर ओनली क्वार्टर होता, ठीक है, देन क्या होता, इट विल क्रिएट वन मोर रो. सो सपोज यदि दोनों में मैच नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, Q1 एक रो हुआ, Q2 एक रो हुआ, एंड देन क्वार्टर विल बी द नेक्स्ट रो. अब इसमें जो भी वैल्यू है, सपोज इसके पास वैल्यू नहीं है, देन इट विल पुट द एन, क्योंकि इसके पास तो वैल्यू नहीं है क्वार्टर का. ओके, क्वार्टर का वैल्यू किसके पास है, PQ1 के पास है. ओके, दैट ग्रेट. अब सपोज यहाँ पर एक वैल्यू होती ही नहीं नाउ, ठीक है, एक ही वैल्यू होती नाउ. लुक, ओके, क्या किया, Q1 इसके पास वैल्यू है, डिस्प्ले किया, इसके पास Q1 है नहीं, ओके, एन इनपुट किया. Q2 इसके पास है, वैल्यू पुट किया, सेकंड के पास वैल्यू नहीं है, एन इनपुट किया. नाउ क्वार्टर इसके पास नहीं है, फर्स्ट वाले के पास एन इनपुट किया, सेकंड वैल्यू क्या हो गया, 8000 हो गया. सो इट विल क्रिएट लाइक दिस, ठीक है. सो डिक्शनरी कैन कंटेन अनदर डिक्शनरी. सो इट एक्सेप्ट सिंगल वैल्यू. यहाँ पर अब सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज ये इसको एज इट इज रो बना देगा, ठीक है. कहने का मतलब है कि सपोज यदि आपने यहाँ पर लिया और इसको डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है, नो इसको छोड़ दो, पूरा हटा दो. ओके, सो अब क्या होगा, यहाँ पर लास्ट टाइम क्या था, लिस्ट था, अभी हमने क्या बना दिया, डिक्शनरी बना दिया. नाउ विल एक्सेप्ट, ठीक है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है. सो यहीं पर सपोज हम लोग और क्रिएट कर लेते हैं, कॉमा 2016. ओके, अब देखो क्या होगा, तो जितने भी आपके पास की वैल्यू पेयर बनते जाएंगे, टू मेक द डिफरेंट कॉलम्स. ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला जो आउटर है उसको क्या बनाएगा, इट विल क्रिएट वन कॉलम. इनर वाले को क्या बना रहा है, रो. सो क्वार्टर अगेन द सेम थिंग. सपोज यहाँ पर ये आया, देन क्या होगा, एन क्वार्टर इसमें चेक करेगा, इसमें चेक करेगा, अवेलेबल नहीं है, देन इट विल डिस्प्ले एन. यहाँ पर अवेलेबल है, देन इट विल डिस्प्ले द वैल्यू, फॉर सेकेंड इट विल डिस्प्ले एन. ठीक है, सो इसको ध्यान रखना है. ओके, सो व्हेन अ डिक्शनरी कंटेन द लिस्ट, हमने यहाँ पर देखा जब डिक्शनरी लिस्ट में होती है तो इसकी वन वैल्यू, इसकी सेकेंड वैल्यू. ओके, सो यहाँ पर मैं दोनों हटा देता हूँ इसको, ठीक है. अगेन यहाँ पर कॉलम्स हटा देते हैं, देन इट विल बी क्लियर, ठीक है. सो फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू. ओके, ऐसे ये रो बनाता है. सो इन द सेम केस यहाँ वैल्यू, इधर की वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, ठीक है, अवेलेबल है, देन विल डिस्प्ले. सो व्हेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, देन यहाँ से सीरियली वन बाय वन वैल्यू पिकअप कर लेता है. बट व्हेन द वैल्यूज इन डिक्शनरी, तो अब इसको क्या बना देगा, रो बना देता है. ठीक है, यहाँ पर भी रो बनती है, बट यहाँ पर रो लेवल्स नहीं होती, यहाँ पर रो लेवल के साथ में रो बनती है. ठीक है, कितना क्लियर है दोनों चीजें. यस सर. यहाँ पर लिस्ट था, हाँ आदित्य, आदित्य यस सर. डाउट है. हाँ सर. हम्म, नहीं सर. ओके, ठीक है. तो प्रॉब्लम कहाँ पर था, यहाँ पर था. यहाँ पर लिस्ट है और यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी. तो जब डिक्शनरी होगा तो ध्यान रखना है कि इसको क्या बनाएगा, रो बनाएगा, बट विथ रो लेवल बनाएगा. यहाँ पर रो लेवल नहीं सेट होता है, देन इट विल पिक द वन वन वैल्यूज. ठीक है,
It's okay. Now next, suppose अब 2D array हमने देखा है 2D array, 2D array सिंपल है, 2D array से भी सेम वैसे ही आपके पास क्या बनती है, डेटा फ्रेम, ठीक है। सो 2D array अभी array हम लोगों ने देखा नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डेटा फ्रेम, ठीक है। सो डिफरेंट ऑपरेशंस क्या क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई इसका इंडेक्स क्या है, ठीक है। सो नाउ वी यूज सम इनबिल्ट फंक्शंस, ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ द डेटा फ्रेम, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या है आपके पास, सेव है, ठीक है। सो सपोज हमने यूज किया df डॉट सेव, ठीक है। df डॉट सेव क्या मिला, 2 by 2, ओके, बिकॉज वी हैव 2 rows and 2 columns, ठीक है। df डॉट सपोज आई यूज इंडेक्स, नाउ इंडेक्स क्या है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 1, ओके। इंडेक्स ए बी, किसका यूज कर रहे हैं इंडेक्स ए बी, ओके, हाँ एक और चीज था, सपोज इफ यू सेट इंडेक्स हियर, ओके, इंडेक्स इक्वल टू, सपोज हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ठीक है। हमने सेट कर दिया x एंड देन y, ठीक है। नाउ मुझे देखना है कि होगा क्या, ठीक है। इंडेक्स चेंज हो गया, सो व्हेन इंडेक्स चेंज हुआ देन क्या हुआ, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 डिस्प्ले नहीं होगा, सेम। यदि आप कॉलम चेंज करेंगे तो सेम, और रो भी चेंज करेंगे देन इट विल सेम। सो इफ द मैच देन वैल्यू विल बी डिस्प्लेड, अदरवाइज द वैल्यू विल नॉट डिस्प्ले, ठीक है। इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इज xy. So in the same case, suppose if you remove this, then it will display index quarter 1 and quarter 1, ठीक है। It's clear. Then columns, suppose in the same case df dot columns, it will display column, okay. df dot axis, sorry, so ये आपका एक्सिस है, ओके। क्या रिटर्न करता है, बोथ द एक्सिस, मतलब आपकी रो भी रिटर्न करेगी एंड कॉलम भी रिटर्न करेगी, ओके। कॉलम इंडेक्स एंड रो इंडेक्स दोनों रिटर्न होंगे। सो ऑन द जीरो, ठीक है, आपके जीरो पर क्या होगा, इट विल रिटर्न द रो इंडेक्सेस, और ऑन द 1 इट विल रिटर्न द कॉलम इंडेक्स, ठीक है, ध्यान रखना है। सो ऑन द जीरो इंडेक्स एक लिस्ट है, ओके। लिस्ट पर क्या हो रहा है, ऑन द जीरो इंडेक्स इट रिटर्न रो इंडेक्सेस, जीरो it return what it return, row index, okay. 1 on 1 it return column index, okay. now ठीक है। now the next आपका size, ठीक है। so df dot size, okay. size it means the total number of elements, okay. so size is total number of elements, ठीक है। so size returns total number of elements, okay. So we have 2 rows, 2 columns with the 2 values, then we get the total 4 elements, okay. Now the next most important is shape, okay. So shape is the first the number of rows and the number of columns in a tuple form, in the tuple form, in the tuple form, okay, in a tuple form, ठीक है। नेक्स्ट विल सी, ठीक है, बाकी चीजें हम लोग कल देखेंगे। सो कल हम लोग देखेंगे डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक है, क्या क्या है ना आदित्य। ओके